તો ચાલો આજના આ સુંદર કાર્યક્રમની શુભ શરૂઆત આપણે ખુશીઓના સાગર પરમાત્માની યાદથી કરીએ. ચાલો 3 મિનિટ માટે આંખોને બંધ કરીએ. મન, મુખ અને મોબાઈલ ત્રણેયને મૌન કરી દઈએ અને એકદમ શાંત ચિત્તે પરમાત્મા ખુશીઓના સાગર પિતાનું આહ્વાન કરીએ. खुश रहो, मुस्कुराते रहो, सदा खुश रहो, मुस्कुराते रहो, खजाना खुशी का लुटाते रहो, खजाना खुशी का लुटाते रहो. गाते रहो, गुनगुनाते रहो, गाते रहो, गुनगुनाते रहो, मिलन प्यारे प्रभु से मनाते रहो, मिलन प्यारे प्रभु से मनाते रहो, सदा खुश रहो. अच्छा ही होगा फिकर क्यों करे, हर बात में सबका कल्याण है, हर बात में सबका कल्याण है. खुशी का मरम ये सुनाते रहो, सदा खुश रहो, मुस्कुराते रहो, खजाना खुशी का लुटाते रहो, सदा खुश रहो. चलो कुछ कहा किसने क्या हो गया, खुशी खो गई मानो सब खो गया. चलो कुछ कहा किसने क्या हो गया, खुशी खो गई मानो सब खो गया. खुशी जैसी कोई दवा ही नहीं, खुशी जैसी कोई दवा ही नहीं, ये अमृत है सबको पिलाते रहो, गाते रहो, गुनगुनाते रहो, मिलन प्यारे प्रभु से मनाते रहो, सदा खुश रहो. ઓમ શાંતિ. ખુશીઓના સાગર પરમાત્માની દિવ્ય અને સૂક્ષ્મ ઉપસ્થિતિમાં આજના આ કાર્યક્રમમાં ખાસ ઈશ્વરીય નિમંત્રણને માન આપીને ઉપસ્થિત થયેલા મંચ સમક્ષ બિરાજમાન આપ સર્વ અતિથિ દેવો ભવનું દિલથી સ્વાગત સત્કાર છે. જોરદાર તાલીઓથી વિશેષ મહાનુભાવોનું આપણે સ્વાગત કરીશું. સાથે સાથે આજની
આ વિશાળ સભાની શોભાને વધારનાર આપ સર્વ ભાઈઓ બહેનો તથા બાળકોને અમરેલી બ્રહ્માકુમારીઝ પરિવાર તરફથી ખૂબ ખૂબ દિલથી સ્વાગત છે, સ્વાગત છે, સ્વાગત છે. આપ સર્વ જાણો છો કે બ્રહ્માકુમારીઝ એક આંતરરાષ્ટ્રીય આધ્યાત્મિક સંસ્થા છે કે જે છેલ્લા 87 વર્ષોથી માનવતાના ઉત્થાન માટે ભગીરથ સેવા કાર્ય કરી રહી છે. વિશ્વના 140થી પણ વધુ દેશોમાં હજારો સેવા કેન્દ્રો દ્વારા વિશ્વ કલ્યાણ અને વિશ્વ નવનિર્માણનું કાર્ય આ સંસ્થા દ્વારા થઈ રહ્યું છે. નારી શક્તિ દ્વારા સંપૂર્ણ સુચારુ રૂપે સંચાલિત આ બ્રહ્માકુમારી વિદ્યાલયમાં અમારા જેવા 30,000થી પણ વધુ બાલ બ્રહ્મચારી કુમારી બહેનોએ પોતાનું જીવન જનજનની સેવા અર્થ સમર્પિત કર્યું છે. સમાજના અલગ અલગ ક્ષેત્રના લોકોની સેવા કરવા માટે બ્રહ્માકુમારીઝમાં 20 જેટલા અલગ અલગ પ્રભાગો બનેલા છે, જેમ કે યુવા પ્રભાગ, મહિલા પ્રભાગ, મેડિકલ વિંગ, સાયન્ટિસ્ટ એન્જિનિયર વિંગ્સ, આવી અલગ અલગ 20 વિંગ્સ દ્વારા સમાજના જુદા જુદા વર્ગના લોકોની સેવા થઈ રહી છે. આધ્યાત્મિક જ્ઞાન અને રાજયોગ મેડિટેશનની અમૂલ્ય શિક્ષા આ વિદ્યાલય દ્વારા બિલકુલ વિનામૂલ્યે આપવામાં આવે છે, જેનાથી અનેક લોકોનું જીવન નિરોગી, નિર્વ્યસની, તણાવમુક્ત અને ખુશનુમા બન્યું છે. લાખો ગ્રહસ્થી ભાઈ બહેનો આ સંસ્થા સાથે જોડાઈને પોતાના ઘર ગ્રહસ્થને સ્વર્ગ સમાન બનાવી રહ્યા છે. પરમાત્મા પ્યાર, ખુશી, શાંતિ અને શક્તિની અનમોલ ભેટ સંસારની દરેક આત્માને આપવાનું આ બ્રહ્માકુમારી વિદ્યાલયનું મુખ્ય લક્ષ્ય છે. તો આજના આ કાર્યક્રમ અલવિદા તનાવનું પણ એ જ લક્ષ્ય છે કે અમરેલી શહેરની એક પણ આત્મા વંચિત ન રહી જાય, બધાને પરમાત્માનો પ્યાર મળે, પરમાત્માની અસીમ શક્તિ મળે, સકારાત્મક ઉર્જાનો સ્ત્રોત મળે અને ખુશીઓનો સાગર મળે. એવા સુંદર લક્ષ્ય સાથે આજના આ કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવેલું છે. આજથી શરૂ થતી આ 9 દિવસીય શિબિરની શરૂઆત આપણે દીપ પ્રાગટ્યથી કરીશું. ચાલો આવા સુંદર લક્ષ્યને આપણે દીપ પ્રજ્વલનથી પ્રજ્વલિત કરીશું. સૌ પ્રથમ હું આમંત્રિત કરીશ આ મંચની શોભાને વધારવા અહીં ઉપસ્થિત આધ્યાત્મ જગતના દૈદીપ્યમાન ત્રિમૂર્તિ રત્નોને. આપણે સૌ જોરદાર તાળીઓથી એ ત્રિમૂર્તિ રત્નોને વધાવીશું. સૌ પ્રથમ હું સાદર આમંત્રિત કરું છું આપણા સર્વના આદર્શ પ્રેરણામૂર્તિ, ખાસ ભાવનગરથી આપણી વચ્ચે આજના ઉદ્ઘાટન કાર્યક્રમમાં પધારેલા એવા પરમ આદરણીય રાજયોગીની બ્રહ્માકુમારી તૃપ્તિબેન, આપ મંચ પર સાદર પધારો અને આજના આ કાર્યક્રમની આ મંચની શોભાને વધારો. સાથે સાથે આ અલવિદા તનાવ શિબિર કરાવવા માટે આપણી સાથે ખાસ ઇન્દોરથી પધારેલા આદરણીય તનાવ મુક્તિ વિશેષજ્ઞ બ્રહ્માકુમારી પૂનમબેનને પણ હું નમ્ર નિવેદન કરું છું કે આપ મંચ પર પધારો. આપણે સૌ જોરદાર તાલીઓથી આ ત્રિમૂર્તિ રત્નોને વધાવીશું. આ કાર્યક્રમનું ભવ્ય આયોજનના જેનો શુભ સંકલ્પ છે અને જેણે અથાગ પ્રયાસ કર્યા છે આ કાર્યક્રમને સફળ બનાવવા માટે, એવા અમરેલી શહેરના અમરેલી સેવા કેન્દ્રના બ્રહ્માકુમારી ગીતા દીદીનું પણ ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે. ત્રિમૂર્તિ રત્નો આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત છે. ત્યારે આ અમરેલી નગરના પ્રથમ નાગરિક એવા નગરપાલિકા પ્રમુખ સન્માનનીય મનીષાબેન રામાણીને હું નમ્ર નિવેદન કરું છું કે અમરેલી નગર વતી આપ ત્રણેય દિવ્ય રત્નોને પુષ્પગુચ્છથી સન્માનિત કરશો. માનનીય મનીષાબેન રામાણી. આપણી ખુશીને આપણે તાળીઓથી વ્યક્ત કરીશું
આ એ દિવ્ય રત્નો છે, આ મહાન પ્રતિભાઓ છે, જેણે અનેકોના જીવનનો ઉદ્ધાર કર્યો છે, જે અનેકોના જીવનના દીપ પ્રગટાવનાર છે. આ એ દિવ્ય સિતારાઓ છે કે જેનાથી આકાશ ચમકે છે તો ધરા પણ ચમકી રહી છે. આ એ મહાન વિભૂતિઓ છે કે જે એક એક દ્વારા અનેક આત્માઓ સુધી પ્રભુ સંદેશ પહોંચી રહ્યું છે. આપણી તાલીઓ ઓછી ન થવી જોઈએ. જોરદાર તાલીઓથી આ દિવ્ય રત્નોને આપણે વધાવી લઈએ. તમારા બધા વતી આ સ્વાગત થઈ રહ્યું છે. અમરેલી નગરના પ્રથમ નાગરિક એ આપણા બધા વતી આ ત્રણેય રત્નોનું સ્વાગત કરી રહ્યા છે. ખૂબ સુંદર સ્વાગત સાથે આજથી શરૂ થતા આ અલૌકિક અનેરા ઉત્સવને ખુશી, શ્રદ્ધા અને સ્નેહના દીપકથી પ્રકાશિત કરવા માટે હું સહૃદય આમંત્રિત કરું છું સભામાં ઉપસ્થિત વિશેષ મહાનુભાવો કે જેમને આજના પ્રસંગના ઉદ્ઘાટન માટે વિશેષ આમંત્રણ આપ્યું અને આપ સર્વ પધાર્યા છો. એક એકના નામ હું નહીં બોલી શકું, પણ આપ ચોક્કસ કે જે પણ આપ પધાર્યા છો દીપ પ્રાગટ્ય કરી અને આપના વરદ હસ્તે આ શુભ ઉદ્ઘાટન કરશો. સન્માનનીય મહાનુભાવો જે આગળ વિરાજમાન છે, સાથે સાથે અલગ અલગ સેવા કેન્દ્ર પરથી પધારેલા બ્રહ્માકુમારી બહેનો પણ મંચ પર આવશે. આપના વરદ હસ્તે દીપ પ્રાગટ્ય થશે અને આજે આ અમરેલી જળહળી ઉઠશે. એક દિયા હमें बहुत कुछ सिखाता है. પેલી સાઈડ થી પણ આવશે. પેલી સાઈડ પણ જતા રહો. પેલી સાઈડ एक दिया हमें बहुत कुछ सिखाता है. दिया माना सबको दिया, दिया माना सबको दिया, किसी से कुछ नहीं लिया. पहली साइड जता रहो, पहली साइड. ये दिया आशाओं का दिया, ये दिया विश्वास का दिया, ये दिया सद्भावना का दिया, ये दिया दया और करुणा का दिया. चलो आज से हम अपने मन में ऐसे शुभ संकल्पों के दीप जलाए, अपने मन मंदिर को, अपने घर मंदिर को और पूरे समाज को, पूरे विश्व को रोशन करे. ऐसे शुभ संकल्पों के दिए जलाए. આપણે સૌ જોરદાર તાળીઓથી આ રોશનીને રોશન કરીશું. તમારી પાસે મોબાઈલ છે, મોબાઈલમાં ટોર્ચ ઓન કરો. તમે પણ જીવનને ઝળહળાવી શકો છો. બધાની પાસે મોબાઈલ છે, મોબાઈલની ટોર્ચ ઓન કરીને ઉપર કરશો. સુંદર રોશની સભામાં પણ ફેલાઈ જશે. કેટલી સુંદર સભા અને આ મંચ એ ઝળહળી રહ્યું છે. અમરેલી શહેરની એક એક આત્માનું દીપ પ્રજ્વલન થયો છે. અજ્ઞાન અંધકાર મટ્યો છે અને જીવનમાં ખુશી, શાંતિ, શક્તિ અને પ્યારની રોશની ફેલાઈ રહી છે. એક મિનિટ પરમાત્માની યાદમાં સૌ ઉભા રહેશું શુભ સંકલ્પ સાથે કે આ દીપથી અનેક દીપ પ્રગટે, અનેકોનું જીવન જગમગી ઉઠે. शुभ संकल्पों के मोती हम भर भर सब पे लुटाएंगे. बुझे आत्मदीपों में हम फिर से आस जगाएंगे. शुभ संकल्पों के मोती हम भर भर सब पे लुटाएंगे. ખૂબ સુંદર આ મંચ અને સભા ઝગમગી ઉઠી છે. મંચ પર વિરાજમાન સર્વ મહાનુભાવોનું દિલથી સ્વાગત, સત્કાર અને ધન્યવાદ છે કે આપનો અમૂલ્ય સમય ફાળવીને આપ આજના આ મંગલ ઉદ્ઘાટન કાર્યક્રમમાં પધાર્યા છો. મંચથી નીચે ઉતરતા આપને પરમાત્મા પ્રેમના પુષ્પોથી સન્માનિત કરવામાં આવશે
અને સાથે સાથે પરમાત્માના ઘરનો અમૂલ્ય પ્રસાદ અને પરમાત્માની ભેટ પણ અર્પણ કરવામાં આવશે. મંચ પરથી ઉતરીને આપ એ ચોક્કસ સ્વીકાર કરતા જશો. हो सबके સર્વ મીડિયાકર્મી ભાઈઓ પણ પરમાત્મા પ્રેમના પુષ્પ અને ભેટ સ્વીકાર કરશો. ખૂબ સુંદર મંગલમય ઉદ્ઘાટન થયું. આ કાર્યક્રમની આપણે વિધિવત શરૂઆત કરીએ. સૌ પ્રથમ વડીલોના આશીર્વચન એ કોઈ પણ કાર્યની સફળતા માટે ખૂબ જ અનિવાર્ય છે. આપણી વચ્ચે આપણા સર્વના વડીલ એવા સન્માનનીય આદરણીય રાજયોગીની બ્રહ્માકુમારી તૃપ્તિબેન ભાવનગરથી ખાસ પધાર્યા છે. આપનો પરિચય, આપ છેલ્લા 54 વર્ષોથી આધ્યાત્મિકતાના માર્ગ સાથે નિરંતર સંકળાયેલા છો. આપ છેલ્લા 48 વર્ષોથી ઈશ્વરીય સેવાઓમાં અનેકોનો ઉદ્ધાર કરવા માટે સંપૂર્ણ સમર્પિત રૂપમાં સેવાઓ આપી રહ્યા છો. ભાવનગર સબઝોન એટલે કે ભાવનગર, બોટાદ અને અમરેલી જિલ્લાના લગભગ 18 જેટલા સેવા કેન્દ્રોનું સુચારુ રૂપે આપ સંચાલન કરી રહ્યા છો. બ્રહ્માકુમારીઝના કલા સંસ્કૃતિ પ્રભાગના આપ ગુજરાત કોઓર્ડિનેટર છો. બહુમુખી પ્રતિભા સંપન્ન બહેન આપ તૃપ્તિબહેનજી, આપના માટે હું કહીશ, સાગર જૈસા વિશાલ હૃદય, ગંગા જૈસા પાવન ચરિત્ર, સૂરજ જૈસા તેજસ્વી તપસ્વી જીવન, ચંદ્રમા જૈસા શીતલ સરળ સ્વભાવ. આદરણીય તૃપ્તિબેન પાસેથી આ કાર્યક્રમની સંપૂર્ણ સફળતા માટે આપણે આશીર્વચન પ્રાપ્ત કરીશું. આદરણીય તૃપ્તિબેન. ઓમ શાંતિ. જોરથી ઓમ શાંતિ. ઓમ શાંતિ. વિશ્વ નવનિર્માતા, દિવ્ય બુદ્ધિદાતા, સર્વના દુઃખ હરતા સુખ કરતા, ખુશીઓના મહાસાગર એવા શિવ પરમપિતા પરમાત્માના સર્વ સંતાન વિશેષ સન્માનનીય મંચ ઉપસ્થિત આપણા સૌ માટે ખાસ ઇન્દોરથી આ ભૂમિ પર પહોંચ્યા. અમરેલીની ભૂમિ આજ ધન્યતા અનુભવ કરી રહી છે કે જ્યાં અનેક વર્ષોથી અલવિદા તનાવ શિબિર કરાવનાર ખાસ એના વિશેષજ્ઞ, સર્વમાં સકારાત્મક ઉર્જાનો સંચાર કરનાર, સદા જ્ઞાનના અમૂલ્ય રત્નોનું ચિંતન કરી, જ્ઞાનનું મંથન કરી, માખણ કાઢી સર્વને સશક્ત બનાવનાર એવા ખાસ પરમાત્માના અતિ પ્રિય, આપણા સૌના પણ અતિ પ્રિય એવા
સ્નેહી પૂનમબેન. પૂનમનો ચાંદ સંપૂર્ણ ખીલેલો, સોળે કળા ખીલેલો, એની શીતલ ચાંદની, એનો ધવલ પ્રકાશ, એની સોળે કળાઓ સર્વને પ્રેરણા આપનાર છે. આજે એવા પૂનમના ચાંદ સમાન પૂનમબેન આપણી વચ્ચે પધાર્યા છે. આપણા સૌના અતિ સૌભાગ્યની વાત છે. અતિ વ્યસ્ત, સેવાધારી, અતિ નિર્માણ, અતિ સશક્ત, સદા ખુશીઓમાં રહેનાર અને સર્વને ખુશ કરનાર પૂનમબેનનું આજની આ સભામાં ખૂબ ખૂબ દિલથી સ્વાગત છે, સ્વાગત છે, સ્વાગત છે. અને જેમને આજે અમરેલીની ભગવાનને ભાવના રાખીને યાદ કરનાર એવી ધર્મપ્રેમી જનતા માટે આવા સુંદર કાર્યક્રમનું આયોજન કર્યું. લગભગ 1 મહિનાથી આ આયોજન, આની તૈયારી એ આપણા સર્વના અતિ સ્નેહી, અથક, સેવાધારી, ત્યાગ, તપસ્યા અને સેવાની પ્રતિમૂર્તિ રાજયોગીની બ્રહ્માકુમારી ગીતાબેન, એમને તો જેટલા આપણે અભિનંદન, ધન્યવાદ આપીએ એટલા ઓછા છે. એમને જે મળ્યું આપ સર્વને આપવાની દિલની ભાવના છે અને એવી એક નિસ્વાર્થ ભાવનાથી આ કાર્યક્રમનું આયોજન કર્યું. આપ સર્વને અહીંયા સુધી પહોંચાડવા માટે ઘણી બધી પબ્લિસિટી કરી. યાદ આવે છે એવું કે મેળામાં ખોવાઈ ગયેલું બાળક હોય અને ખોવાઈ ગયેલા બાળકને શોધવા એના માતા પિતા કેટલીને દોડાદોડી કરે, કેટલીને જાહેરાતો આપે કે ક્યાંકથી મારું બાળક મળી જાય. પરમપિતા પરમાત્માએ આ માધ્યમ દ્વારા ખૂબ ખૂબ આપ સર્વને પરમાત્મા સુધી પહોંચાડવા માટે, આ સ્થાને ઠેકાણે પહોંચાડવા માટે ઘણી બધી મહેનત કરી, દોડાદોડી કરી, જાહેરાતો કરી છે. અને આપ સર્વ જ્યારે અહીંયા પહોંચ્યા છો તો જરૂર અતિ અતિ હર્ષની લાગણી અનુભવાઈ રહી છે. આજે ખુશીઓનો મહાસાગર અમરેલીમાં સાક્ષાત હાજર છે અને એવા ખુશીઓના મહાસાગરમાં આપ સર્વ લહેરાવા માટે, ડૂબકીઓ લગાવવા માટે પહોંચ્યા છો તો જરૂર ડૂબકી લગાવી ઊંડાણથી અમૂલ્ય રત્નોને પણ પ્રાપ્ત કરશો જ, એવી અંદરની પૂર્ણ વિશ્વાસ સાથેની શુભ ભાવના છે. આગળ પણ બતાવ્યું, ખુશી જેવો ખોરાક નહીં, ખુશી જેવી દવા નહીં. અને આજે પણ જ્યારે કોઈ બીમારી હોય અને ડૉક્ટર્સ પાસે પેશન્ટ જાય છે તો પ્રિસ્ક્રિપ્શનમાં લખી દેશે આ દવાઓ લેજો, દિવસમાં 2 વાર 3 વાર, અને છેલ્લા એવું લખશે ચિંતા નહીં કરશો, ખુશ રહેજો. લખે છે ને એવું. ખબર છે કે ચિંતાથી ઘણા બધા રોગોને વશીભૂત થઈ જઈએ છીએ, એટલે ખુશ રહેવું એ અતિ આવશ્યક છે. પણ ડૉક્ટરની હોસ્પિટલમાં એટલી બધી પેશન્ટની લાઈન હોય છે કે કઈ રીતે ખુશ રહેવું, એના માટે શું કરવું,
એ સમજાવવાનો સમય નથી હોતો. ઘણી વખત એમ કહેવામાં આવે છે કે તમે બ્રહ્માકુમારી સેન્ટરમાં જજો અને ત્યાં મેડિટેશન શીખજો, ત્યાંની વાતો સાંભળજો તો જરૂર ખુશ રહેશો. એટલી ખબર છે એટલે વિસ્તાર માટે ઘણીવાર આ રીતે સંસ્થામાં પણ મોકલતા હોય છે. એટલે ખુશી એ સર્વને માટે અતિ જરૂરી ખજાનો છે. જેમ કહ્યું ચાવી છે, ચાવી હોય તાળું ખુલે અને ખજાનો મેળવે. આ ખજાનો પણ ક્યાં છે? બહાર નથી. આપણે બહાર દોડીએ છીએ. કોઈ સુંદર નાટક જોવા જઈશું, કોઈ ટીવીના શો જોઈશું, વગેરે વગેરે ઘણું બધું અલ્પકાળની ખુશી જરૂર આપે છે. સદાકાળની ખુશી માટે તો આપણે અંદર જ જવું પડશે. અહીંયા 9 દિવસ સુધી આપને એટલી બધી ટિપ્સ આપવામાં આવશે, એટલી સમજ આપવામાં આવશે કે કોઈ પણ પરિસ્થિતિ કે સમસ્યાની વચ્ચે તમે રસ્તો કાઢી શકશો, તમે ખુશ રહી શકશો, તમારા વિચારોના પાથને ચેન્જ કરી શકશો. વ્યર્થ અને નેગેટિવ ચાલતા હશે એને સકારાત્મક તરફ, સમર્થ વિચારો તરફ લઈ જઈ શકશો. એવી શક્તિ પ્રાપ્ત થશે, એવી સમજ પ્રાપ્ત થશે. સમજ, જ્ઞાન, જેને લાઇટ કહેવાય, અને લાઇટ પ્રાપ્ત થતા પોતાને પણ લાઇટ રહેવાની શક્તિ મળશે. એ નિશ્ચિત છે. આજે હજારો નહીં, લાખો ભાઈ બહેનો આધ્યાત્મિક જ્ઞાન અને રાજયોગના અભ્યાસ દ્વારા પોતાના જીવનનું પરિવર્તન કરી અને સદાને માટે લાઇટ રહેવાનો અનુભવ કરી રહ્યા છે. જીવન મળ્યું છે. માનવ જીવન સર્વશ્રેષ્ઠ જીવન છે. પણ એના માટે શું કહેવાય છે? ક્યારેક જીવન ખુશીઓનો બાગ છે તો ક્યારેક ચિંતાની આગ છે. બધું કહેતા એમ જ કહીશું કે બધા કર્મોના હિસાબ છે. હંમેશા જાણીએ છીએ કર્મ તો કોઈને છોડતું નથી. મતલબ શ્રેષ્ઠ કર્મ એ જ ખુશી માટેનો એક મુખ્ય આધાર છે. પણ ઘણીવાર નોલેજ છે કે શ્રેષ્ઠ કર્મ કરવું જોઈએ અથવા આ ખરાબ છે અને આ શ્રેષ્ઠ છે, આ પાપ છે, આ પુણ્ય છે. જાણતા હોવા છતાં, ઈચ્છા હોવા છતાં પણ આપણી એક આંતરિક કમજોરી છે. મેજોરિટી એમ કહેશે કે ઈચ્છીએ તો છીએ, કરવું તો છે, પણ શું નથી થતું. ન ઈચ્છવા છતાંય આ બોલાઈ જાય છે, આ જોવાઈ જાય છે, આ વિચારો આવી જાય છે. અર્થાત આપણી આંતરિક એક કમજોરી છે. ભક્તિ તો વધી રહી છે, ભગવાન માટેની ભાવના પણ છે, પણ બીજી બાજુ શક્તિ પણ ઘટી રહી છે. આજે વધી રહી છે સમસ્યાઓ, વધી રહ્યા છે પ્રોબ્લેમ્સ, જે પહેલાં નહોતા એ આજે છે. એ દરેક અનુભવે છે. તો એક બાજુ સમસ્યાઓ વધે છે અને શક્તિ ઘટે છે, જેના પરિણામે જ જે આજના શિબિરમાં આપ સર્વ આવ્યા છો, તણાવ, ટેન્શન એનું પરિણામ છે. આજનો ટેન્શનનો યુગ કહો, ડિપ્રેશનનો યુગ કહો, અને એમાં જ્યાં સુધી આપણે આંતરિક શક્તિઓને નહીં વધારીએ ત્યાં સુધી સમય સાથે ચાલી નહીં શકીએ. આ સમય સાથે ચાલવું હોય, દિવસે દિવસે ઘટવાનું નથી, સમસ્યાઓ વધવાની છે, એ આપણે સૌ જાણીએ છીએ, વધી રહી છે ને વધશે. તો આપણે સૌએ પણ સર્વશક્તિવાન પરમાત્મા પાસેથી કનેક્શન કરી અને શક્તિઓ લેવી પડશે.
અને એ શક્તિઓ જેમ જેમ વધશે એમ કહેવાય છે કે મોટી પહાડ જેવી પરિસ્થિતિઓ પણ રાઈ બની જશે અથવા રૂઈ બની જશે એવું અનુભવાશે. કેટલી સુંદર જીવનની આ વાત છે, કેટલા સુંદર જીવન જીવવાની આ શૈલી છે કે જે આપણે સૌએ આ શિબિર દરમિયાન શીખવાની રહેશે. હું તો એમ કહીશ, આજે તો આવ્યા છો, 9 દિવસ આવવા માટેનો સંકલ્પ દ્રઢ રાખજો. ઘણી બધી વાતો કદાચ વચ્ચે રજા પાડવા માટેની આવી જાય એવું લાગે પણ ખરું, છતાંય બને એટલી દ્રઢતાથી આ 1.5 કલાક માટે જવું જ છે. અત્યારે નહીં તો પછી ક્યારેય નહીં. આ ચાન્સ મળ્યો છે, આટલે દૂરથી જ્યારે બેન અહીં પહોંચ્યા છે આપ સર્વ માટે, તો શું આપણે 24 કલાકમાંથી 1.5 કલાક ન કાઢી શકીએ? જ્યારે આપણું જીવન આટલું સુંદર બની શકતું હોય. બાકી આજકાલ તો ખુશી માટે તો ફાંફા મારે છે, અને જેમ કહેવાય ખુશ કરનાર જે કોમેડી છે એ લોકો પણ બહારથી જરૂર આપણને ખુશ લાગે છે, અંદરથી તો દુઃખી છે. ડબલ પર્સનાલિટી છે. આજે મનુષ્ય હસવાનું ભૂલી ગયો છે, દિલ ખોલી હસી નથી શકતો, અને એ માટે દિલની ખુશી, આંતરિક ખુશી એ દરેક ઈચ્છે છે. એટલે આજના આ દિવસને ખૂબ મહત્વનો સમજીશું, અને આ દિવસનો પૂર્ણ એકાગ્રતાથી લાભ લઈ તન પણ અહીંયા તો મન પણ અહીંયા રાખીને જે વાતો મંચથી સંભળાવવામાં આવે એને પૂર્ણ એકાગ્રતાથી સાંભળીશું, અને ઘરે જઈને પણ એનું થોડું ઘણું કંઈક ચિંતન કરીશું. અને તમે તો આવો, પણ સાથે હજુ પણ આવતીકાલે 2 હાથમાં કમસે કમ 2 હાથે 2 વ્યક્તિને પણ લઈને આવશો, જેથી એમના જીવનમાં પણ ખુશખુશાલી છવાઈ જાય, આખું અમરેલી ખુશીઓથી સંપન્ન બની જાય, એવી દિલની ખૂબ ખૂબ શુભ ભાવના છે. પરમાત્મા પણ એના આ શુભ ભાવ આપણા સર્વ તરફ પ્રવાહિત કરી રહ્યા છે, તો જરૂર એ આપ સર્વ સુધી પહોંચતા હશે. અને એના જ આદેશથી, એના જ શુભ સંકલ્પથી આ કાર્યક્રમનું પણ આયોજન થયું છે. સાથે સાથે આપ સર્વને પણ સંકેત મળ્યો છે, અને ઠેકાણે પહોંચી ગયા છો. અને ઠેકાણે પહોંચી હવે આપણે આપણા જીવનનું લક્ષ્ય સિદ્ધ કરવાનું છે, પાકું કરવાનું છે, અને સર્વ એવી એક શક્તિને પ્રાપ્ત કરે કે ગમે તે થાય પણ ખુશી ન જાય. બરાબર છે? દરેક સુસંકલ્પ કરશે, ગમે તે થાય, ગમે તે વાત આવે, ગમે તે પરિસ્થિતિ આવે, સદા હું વાહ વાહ કરીશ, હાય હાય નહીં કરું. જે થયું એ પણ સારું, થઈ રહ્યું છે એનાથી સારું, અને હજુ ભવિષ્ય શું થશે, કેવું થશે, કોઈ ચિંતા ભય વગર એક દ્રઢ સંકલ્પ અને શક્તિશાળી વાઇબ્રેશન રાખીશું કે જે થશે ખૂબ ખૂબ સુંદર થશે, ખૂબ ખૂબ કલ્યાણકારી થશે. આપણા સંકલ્પ અને વાઇબ્રેશન કદાચ કંઈ અઘટિત થતું હોય એને પણ પરિવર્તિત કરી દેશે, એવા વિશ્વાસ સાથે દરેક શું થશે, હવે શું થશે વગેરે પ્રશ્ન અને ચિંતા કર્યા વગર આ એક વાતને પણ પકડી રાખીશું, જે થશે ખૂબ સરસ થશે, અને સદા ખુશ રહીશું એવો દ્રઢ સંકલ્પ કરી જીવનને ખુશખુશાલ બનાવશો, એવી દિલની શુભભાવના
તો આપ સર્વને સફળતા તો છે અને આયોજકોને પણ જે મહેનત કરીને આયોજન કર્યું છે એને પણ અતિ આપથી પણ અતિ હર્ષ અનુભવાશે. તો ખૂબ ખૂબ દિલના શુભ ભાવોથી આપ સર્વનો આજના આ અલવિદા તનાવનો જે પહેલું સેશન છે શરૂ કરી રહ્યા છે એના શુભારંભમાં ખૂબ ખૂબ દિલની દુઆઓ છે અને શુભકામનાઓ છે, અભિનંદન છે. ઓમ શાંતિ. बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय तृप्ति बहन जी आपका. आखिर वह दिन आया आज, वो मंगल घड़ी, वो शुभ दिन. हमारी आतुरता का आज अंत आ गया. अब समय है संपूर्ण एकाग्र होने का. अब हमारे बीच उपस्थित है जिसका हम कई दिनों से इंतज़ार कर रहे थे, वो महान विभूति, वो परम हस्ती, वो परमात्मा पिता का ये चांद का पूनम, सम्माननीय पूनम बहन जी. हम जोरदार तालियों से एक बार पूनम दीदी का अभिनंदन करते हैं. आपका मैं संक्षिप्त परिचय देना चाहूँगी. आप आध्यात्मिक कला कौशल से संपन्न एक बहुमुखी प्रतिभा के धनी हो. 7 साल की छोटी आयु से ही आप इस ब्रह्मा कुमारी संस्था से जुड़े हो. आप एक गोल्ड मेडलिस्ट हैं और चार्टर्ड अकाउंट की सुपुत्री है. आपने लौकिक में कंपनी सेक्रेटरी की डिग्री हासिल की है. कंपनी सेक्रेटरी फाउंडेशन कोर्स दिल्ली के एग्ज़ाम में अखिल भारतीय स्तर पर मेरिट लिस्ट में आपने स्थान प्राप्त किया है. आपने अपना संपूर्ण जीवन मानवता की सेवा अर्थ समर्पित करके पिछले 23 सालों से भारत के कोने कोने में यह अलविदा तनाव शिविर कराने की निःशुल्क सेवाएं दे रहे हैं. आपके मार्गदर्शन से हजारों लाखों लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आया है और तनाव मुक्त खुशनुमा जीवन जी रहे हैं. आप जीवन में आने वाली हर समस्या का आध्यात्मिक रूप से समाधान देने वाले एक प्रभु पैगंबर हो. आज से लेकर 9 दिन तक आप हमारे साथ हो और रोज अलग अलग अनुभूतियाँ और उत्सव के साथ हम अमरेली निवासियों के जीवन को नई दिशा और दशा प्रदान करने वाले आप भगवान के दूत, आप हमारे बीच पधारे हो. मैं बहुत खुशी से कहना चाहूँगी कि आज से 16 साल पहले भी पूनम बहन जी हमारे बीच आए थे. इसी स्थान पर, इसी मैदान में ये अलविदा तनाव कार्यक्रम हुआ था. इसमें भी बहुत लोगों ने पार्टिसिपेट किया होगा. कौन कौन है जरा हाथ खड़ा करें. पिछली शिविर में 16 साल पहले भी आए थे. बहुत है. और जिसने 16 साल पहले किया उसके लिए सुंदर रिवीजन है और जो नए हैं उसके लिए तो एक सुंदर नई दिशा मिलने वाली है. चलो अब हम सभी संपूर्ण एकाग्र हो जाए, अपने तन को, मन को बिल्कुल साइलेंस कर दे और अपने पास मोबाइल का जो इंस्ट्रूमेंट है उसको भी स्विच ऑफ कर दे. तो हम संपूर्ण एकाग्रता से ब्रह्मा कुमारी पूनम दीदी का लाभ लेंगे. ओम शांति. बहुत सुंदर एक शांति मंत्र के साथ आज के प्रथम दिवस का चैप्टर हम शुरू करेंगे. शांति मंत्र बजेगा. सर्वेषां शान्तिर्भवतु. सर्वेषां शान्तिर्भवतु. सर्वेषां पूर्णं भवतु. सर्वेषां पूर्णं भवतु. सर्वेषां मङ्गलं भवतु.
ओम शांति। ओम शांति। सभी अमरेली निवासी मीठे भाई बहनों को बहुत प्यार और स्नेह भरा नमस्कार। आज इस शिविर का प्रथम दिन है और हम आपको पूर्ण विश्वास दिलाते हैं कि इस 9 दिन के हैप्पीनेस प्रोग्राम के अंदर आप सभी को ऐसी अलौकिक गॉड्स पावर, ईश्वरीय शक्तियाँ इस शिविर के दौरान आपको मिलेगी, जो आप अपने एक नई जिंदगी खुशनुमा, फुल ऑफ ज़ील एंड एंथुजियाज्म, उमंग उत्साह वाले जीवन की शुरुआत कर सकेंगे। एक किस्से के साथ आज का लेसन प्रारंभ करना चाहूँगी। ध्यान से सुनिए कि एक बार एक बिजनेसमैन ने एक संत से पूछा कि संत जी, मुझे अपने पूरे जीवन काल में खुशी का अनुभव नहीं हो रहा है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है जीवन काल में अपनी लाइफ टाइम में मुझे खुशी मिलेगी भी या नहीं। तो संत उसको पास के एक बगीचे में ले जाते हैं, जहाँ पर छोटे छोटे खूबसूरत गुलाब के फूल खिल रहे थे। तो संत उसको कहते कि तू एक लाइन से चलता जा और जो फ्लावर, फूल तुझे सबसे अधिक खूबसूरत और खुशबूदार लगे, उसको तोड़कर मेरे पास ले आना। पर शर्त थी, एक लाइन से चलना था, और जो फूल छोड़ दिया वो छोड़ दिया, पीछे मुड़कर शर्त थी दोबारा लौट कर नहीं आ सकता था। तो वो बिजनेसमैन चलता गया, रास्ते में खूबसूरत, खुशबूदार, सुंदर सुंदर फ्लावर उसको दिखे, पर हर पुष्प के पास पहुंचकर एक ही विचार उसके मन में आता कि कहीं इससे अधिक खुशबूदार और खूबसूरत ब्यूटीफुल फ्लावर और आगे मिल जाए तो ऐसा सोच कर वो लाइन के अंत तक पहुंच गया। और लास्ट में उसने क्या देखा, थोड़े से मुरझाए हुए फूल बचे थे। अब शर्त थी कि पीछे मुड़कर दोबारा नहीं आ सकता था। तो क्या समझा इस छोटे से प्रसंग से कि हम अपनी जिंदगी में एक बड़ी खुशी की प्रतीक्षा में छोटी छोटी खुशियों को छोड़ते जाते हैं।
इग्नोर करते जाते कि कहीं इससे अधिक खुशी और आगे मिल जाए तो क्या करना आज से? जीवन की हर छोटी छोटी खुशियों को सेलिब्रेट करिए, इंजॉय करिए, तो आप खुशनुमा जीवन जी सकेंगे। अब मैं आपको आज के लेसन की मोस्ट इम्पॉर्टेंट फिलॉसफी की तरफ ले चलती, जो आज का विषय है चिंता रहित जीवन शैली, इंस्टेंट रिलीफ फ्रॉम ऑल वरीज। अब एकाग्र चित होके सुनिए, समझिए, जीवन में अप्लाई करिए। हमारे हर संकल्प में क्रिएटिव एनर्जी होती है। जो कुछ हम बार बार सोचते, लगातार सोचते, वो जीवन में तथास्तु फलीभूत हो जाता है। जो कुछ भी आपकी जिंदगी में हो रहा है, चाहे आपकी हेल्थ को लेकर, बिजनेस धंधों को लेकर, या परिवार रिश्तों को लेकर, मेजॉरिटी केसेस में हमारे विचार उन सब के पीछे जिम्मेवार होते हैं। इसलिए ब्रह्मा कुमारी कहती है, चेंज योर थॉट्स, यू चेंज योर वर्ल्ड। संकल्प बदलने से आपको अनुभव होगा, जीवन बदलेगा। संकल्प परिवर्तन से जीवन परिवर्तन। अगर कई दिनों से आप यही सोच रहे हैं, कई होते हैं ना, सोचते मैं तो गरीब ही हूं, तो आप गरीब ही रहेंगे। क्या फिलॉसफी है समझ लीजिए। मोटे तौर पर 2 प्रकार के मन होते हैं। एक बाहरी मन, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं कॉन्शियस माइंड। दूसरा अंतर मन, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं सब कॉन्शियस माइंड। अब मन का विज्ञान, मन की साइंस क्या कहती है? चाहे पॉजिटिव या नेगेटिव, जो विचार कई दिनों से आप लगातार कर रहे हैं, अंतर मन आज्ञाकारी सेवक बनकर, ओबीडियंट सर्वेंट बनकर आपके जीवन में उसको तथास्तु कर देता है। अगर आप किसी भी काम को करने के पहले ये विचार बार बार करेंगे, भाग्य तो साथ ही नहीं देता है, तो तथास्तु हो जाएगा और भाग्य आपका साथ नहीं देगा। कई होते अंतर मन में भर के रखा है उन्होंने कि टेंशन से फ्री लाइफ पॉसिबल है ही नहीं, तो फिर कितना भी आप प्रयास कर लीजिए, तथास्तु हो जाएगा। आप तनाव मुक्त नहीं हो सकेंगे, क्योंकि आपने अंतर मन में विचार भर दिया कि टेंशन फ्री रहना इम्पॉसिबल। अंतर्मन कैसे काम करता, इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल रोज की लाइफ में हमारे पास आता है। आपने मेजॉरिटी अनुभव किया होगा, रात को हम लोग सोते हैं, कई बार सुबह जल्दी उठना होता है, अलार्म हम लगा के सोते हैं। कईयों ने अनुभव किया है
कि अलार्म बजने के 2-3 मिनट पहले ही हमारी आँख खुल जाती है। किया आप में से किसी ने अनुभव? हाथ ऊंचा करें। क्या कारण उसका? अंतर मन में रात को एक विचार दे दिया था, कल सुबह इतने बजे उठा देना। तो अंतर मन में विचार डाल दिया, तो उसने आज्ञाकारी सेवक बनके तथास्तु कर दिया और सुबह उठा दिया। कहने का भाव, जो विचार हम बार बार सोचते हैं, अंतर मन तथास्तु कर देता है। कभी कभी मन में हम भर के रख लेते हैं कि ये बीमारी मरने पर ही जाएगी, तथास्तु हो जाएगा। डॉक्टर कितने भी प्रयास कर ले, मरने पर ही जाएगी। तो अब हम आपको अंतर मन को क्या पॉजिटिव विचार देना वो बता रहे हैं। आप में से जो भाई बहन नोटबुक पेन लाए हैं, कुछ विचार हम देंगे, आप लिखते चले। और अगर नहीं लाए तो कल से आपके लिए रिक्वेस्ट है, एक कॉपी पेन जो लिख सकते ज़रूर लाइए, ताकि मेन होमवर्क आप लिख सकें। ठीक है? आज कोई लाए हैं तो हाथ ऊंचा करें। लाए हैं तो वेरी गुड, थोड़े हैं। अब कब करना ये विचार? तो मन की साइंस क्या कहती सुनिए, कि जब आप सुबह सो के उठते हैं, ब्रह्म मुहूर्त, सनराइज, अर्ली मॉर्निंग, तो उस समय 20 मिनट तक अंतर मन पूरी तरह जगा हुआ रहता है। तो सुबह के समय 20 मिनट तक जो विचार आप डालेंगे वो तथास्तु हो जाएगा, वैसी जिंदगी बनने लगेगी। तनाव क्यों होता है? कि आजकल सुबह उठते से ही दिन की शुरुआत किससे करते हैं मोस्टली? या तो व्हाट्सएप चेक करते या न्यूज़पेपर। और आप सब जानते कि उसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन होती है। तो ब्रह्मा कुमारी कुछ विचार आज आपको देंगे, जो कल से आप सुबह उठते ही करिए और अनुभव करिए कैसे जीवन बदलेगा। पहला विचार जो लाए हैं कॉपी पेन वो लिख सकते हैं, बाकी हम धीरे धीरे बोलेंगे, आप अभी अंदर डालते चलिए। क्या सोचना? फर्स्ट थॉट, उठते से ही सोचना है। फर्स्ट विचार, मैं टेंशन फ्री हूँ, मेरा जीवन तनाव, विघन, प्रॉब्लम, समस्याओं से मुक्त है। तो क्या हो जाएगा कुछ दिनों में? तथास्तु हो जाएगा। अंतर मन पूरी शक्ति लगा के आपको टेंशन फ्री कर देगा। और अगर ये सोचेंगे कि टेंशन तो लाइफ में रहेगी ही, तो वो तथास्तु होगा। ठीक है? अब ये विचार जो हम 5-7 आपको दे रहे हैं, करना कैसे, विधि क्या, वो सुनिए। आपने सुना होगा बड़े बड़े मेट्रो सिटीज़ जो होती है, वहाँ लाफिंग क्लब्स होते हैं। हंसने के लिए भी क्लब खोलने पड़ रहे हैं। तो लाफिंग क्लब में क्या होता है, वो लोग पार्क में इकट्ठा होते हैं, एक बगीचे में या खुला मैदान होता है, 20, 25, 40 लोग होते हैं।
दोनों हाथ ऊपर करते वो लोग, आकाश को देखते, जोर जोर से हंसते, और फिर भले घर आए तो उदास। तो इसका प्रिंसिपल क्या है मनोविज्ञान का, कि जितना आप खुला देखते, आकाश, सागर, ओपन, उतना आपका माइंड और ब्रेन खुलता जाता है। आजकल खुले में कहाँ रहते हैं? कैसा कल्चर हो गया, जगह ही नहीं है शहरों में। तो जो विचार हम आपको अभी दे रहे हैं, प्रैक्टिस करिए। सुबह उठकर अगर संभव है तो घर में अगर छत है, बालकनी है, या सामने कोई बगीचा है, तो खुले आकाश को देखें, फिर दोनों हाथ ऊपर करके सच्चे मन से वो विचार करेंगे, वैसा जीवन बनने लगेगा। चलिए हम इसकी प्रैक्टिस अभी कर सकते हैं। यहाँ तो खुला आकाश, और भीतर से बोलिएगा मेरे पीछे पीछे, ताकि अमरेली गूंज उठे। अंदर अंदर नहीं बोलना है, ठीक है? चलिए बोलेंगे मेरे पीछे पीछे, दोनों हाथ ऊपर, खुला आकाश। दिल से बोलिएगा, मैं टेंशन फ्री हूं, तनाव से मुक्त हूं, मेरा जीवन तनाव, विघ्न, समस्याओं से मुक्त है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, बहुत अच्छा। तो जैसे हमने धीरे धीरे बोला, वैसे आपको सुबह बोलना है, खुले आकाश को देखकर। घर वालों को बता दीजिएगा ये होमवर्क दिया है शिविर में, नहीं तो बोलेंगे क्या हो गया सुबह सुबह उठ के। ठीक है। दूसरा विचार लिखिए, जो कॉपी पेन लाएं। दूसरा विचार करना है, मैं बहुत सुखी हूं। क्या सोचना? अब ये नहीं सोचना कि दीदी को क्या पता कितने दुख हैं। अगर बार बार सोचेंगे मेरे जैसा दुखी कोई नहीं, तो दुख बढ़ता जाएगा। और इसकी जगह ध्यान से सुनिए, जीवन में पहाड़ जैसे दुख चल भी रहे होंगे अगर, पर विश्वास के साथ कई दिनों तक सोचेंगे मैं बहुत सुखी हूँ, मैं बहुत सुखी हूँ, तो अंतर मन आज्ञाकारी सेवक बनके तथास्तु करेगा और आपको क्या कर देगा? सुखी। इस लॉजिक को समझ लीजिए कि जो विचार हम दे रहे फुल विश्वास के साथ करने, अपने संकल्प में डाउट नहीं करना। विश्वास आध्यात्म की बहुत बड़ी शक्ति है। द्रौपदी की रक्षा किसने की? विश्वास। मीरा के लिए जहर का प्याला अमृत कैसे बना? विश्वास। कई जगह आपने अनुभव किया होगा, एक विश्वास होता है कि फलाने मंदिर का पानी पीने से मेरा ये रोग ठीक हो जाएगा, और व्यक्ति ठीक हो जाता है। किसने ठीक किया? विश्वास के इस संकल्प ने कि इस पानी को पीने से मेरी बीमारी दूर हो जाएगी। तो मीठे भाई बहनों, जो संकल्प आपको हम आज दे रहे हैं, विश्वास के साथ करेंगे तो अंतर मन पूरी शक्ति लगाकर आज्ञाकारी सेवक बनके उस संकल्प को क्या कर देगा? बोलिए क्या कर देगा? तथास्तु। ठीक है, बोलिए क्या कर देगा, ताकि याद रहे। ठीक है, चलिए।
तो बोलेंगे मेरे साथ, मैं बहुत सुखी हूँ। अरे इतने भाई बहन बैठे, अमरेली में आवाज़ नहीं आ रही जोर से? खुले आकाश को देखकर बोलिए, दिल से बोलिए, मैं बहुत सुखी हूँ। बहुत अच्छा, ऐसे बोलना है। हाँ, जैसे धीरे धीरे हम बुलवा रहे हैं, बोलना है, आधा मिनट रुकना है, विचार को अंदर जाने देना। तीसरा संकल्प लिखिए। अगर कई होते हैं ना, बार बार सोचते हैं मैं गरीब हूँ, गरीब हूँ, धन है कहाँ, गरीब हूँ सोचेंगे, कितना भी आप प्रयास कर लेंगे, धन आने वाला होगा तो भी रुक जाएंगे, तथास्तु हो जाएगा, क्योंकि आप गरीब हूँ सोच रहे हैं। और अगर गरीब भी हैं, प्रयास करेंगे, अगर मेहनत करेंगे और दिल से कई दिनों तक सोचेंगे विश्वास के साथ, मैं बहुत धनवान हूँ, तो इससे क्या होगा, धन का मार्ग खुल जाएगा। जो विचार हम दे रहे हैं, बहन ने सुनाया ना, पिछले 23 सालों से ये शिविर भारत के सभी स्टेट्स में कराने की सेवा हम कर रहे हैं। 23 सालों का अनुभव है कि इस शिविर में जो होमवर्क हम देते हैं, एक्शन प्लान, जो भाई बहन उस होमवर्क को करते, उनके जीवन में फुल गारंटी के साथ परिवर्तन आता है। तो अमरेली निवासियों का क्या लक्ष्य है? केवल सुनने आएंगे कि स्टूडेंट लाइफ की तरह होमवर्क करेंगे? बताइए क्या विचार है? क्या विचार है? जो करेंगे, ये स्टूडेंट लाइफ चालू हो गई है, इसलिए बोला ना कल से नोटबुक पेन लाना है। जो ईमानदारी से मेहनत, थोड़ा अटेंशन रखना है, होमवर्क करेंगे, वो हाथ उठाइए। बहुत अच्छा, ताली बजाए फिर जोरदार। तो तीसरा संकल्प क्या करेंगे? सुबह उठकर बोलिए, खुला आकाश, जोर से बोलिएगा, मैं बहुत धनवान हूँ, बहुत सुखी हूँ, टेंशन फ्री हूँ, नो प्रॉब्लम। बहुत अच्छा। चौथा विचार जो लिख रहे हैं लिखते चलिए। कई बार लाइफ में हम देखते हैं ऑटोमेटिक ये कैसेट चलती रहती है, भाग्य साथ नहीं दे रहा है। तो बार बार अगर सोचेंगे भाग्य साथ नहीं दे रहा है, नहीं दे रहा है, तो आप कुछ भी अच्छा काम करेंगे तथास्तु होगा, भाग्य साथ नहीं देगा। इसकी जगह आज से क्या सोचना? मीठे भाई बहनों, ये केवल भावनात्मक बात नहीं बता रहे, मन की साइंस है, मन का विज्ञान। क्या विज्ञान? कि जो आप बार बार सोचते हैं, अंतर्मन आज्ञाकारी सेवक बनके फुल शक्ति लगा देता है और वो जीवन में तथास्तु हो जाता है। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैं बताऊंगी आपको अभी, पर उसके पहले इस विचार को बोलिए, मैं बहुत भाग्यवान हूँ। बोलिए, बहुत भाग्यवान हूँ। तो इससे क्या होगा? भाग्य के बंद द्वार भी खुलते जाएंगे। एक आपको और एग्जाम्पल बताती, अंतर्मन कैसे काम करता। आपने सुना होगा, सत्य घटनाएं होती हैं। कभी कभी दादी माँ बहुत बुजुर्ग हो जाती हैं, फिर भी अंतर्मन में एक विचार डाल के रखती है, फलाने
मैं एक आपको सत्य घटना सुनाऊं। एक दादी माँ ने तो विचार डाल ही दिया था, पोते की शादी का रसगुल्ला खा के ही मरूंगी। अब आप देखिए, उसकी बारात आई, उसके मुंह में रसगुल्ला डाला, फिर गई। तो वो स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन कर लेते हैं, फलाने की शादी ना हो जाए जब तक बैठे हैं, और वो बैठे रहते हैं। क्या कारण? विश्वास के साथ ये विचार अंतर मन में डाल देते हैं। होता है ना ऐसा। एक और सत्य उदाहरण, ऐसी एक हस्बैंड वाइफ थे। अंतर मन कैसे काम करता मैं बता रही। तो दोनों की ओल्ड एज आ गई, बुजुर्ग अवस्था। तो जो पत्नी थी वो रोज भगवान से कहती थी, भगवान चलते फिरते ही ले जाना। रोज कहती, चलते फिरते ले जाना। तो तथास्तु हो गया, सत्य घटना। चलते फिरते वो संसार से चली गई। और जो उसका हस्बैंड थे वो बुजुर्ग हो गए। वो ऐसा रोज सोचते थे, भगवान देखो उनका क्या विचार चल रहा था कि बुढ़ापा आ गया है, बच्चों को खूब सेवा करनी पड़ेगी। बस यही सोचते रहते थे, बुढ़ापा आ गया है, बच्चों को खूब सेवा करनी पड़ेगी। तो लोगों ने बताया कि बच्चों को खूब सेवा करनी पड़ेगी, इसके कारण पहले तो वो बुजुर्ग व्यक्ति बहुत बीमार पड़े, क्योंकि बच्चे सेवा करे, ये हुआ। फिर बोले बीमार पड़े, बच्चों की खूब सेवा ली, और फिर कहीं उन्होंने प्राण त्यागे। समझे इस बात को? तो एक एक विचार कितना असर डालता है। अब मैं आपको एक नेक्स्ट विचार देती हूं। आप सब ऐसा अनुभव करिए, जो आपका राइट हैंड सीधा हाथ, इसको ऐसे रखिए और बोलिए मेरे साथ, मैं भगवान का बच्चा हूं, ईश्वर के वरदान का हाथ, आशीर्वाद का हाथ मेरे सिर पर है। भगवान मुझे वरदान दे रहे हैं। बच्चे, हर कर्म में सफलता तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। बहुत अच्छा, हाथ नीचे करें। वो वीडियो देखेंगे, वीडियो में आप देखेंगे ईश्वर के वरदान का हाथ। अब इसको अप्लाई कैसे करना, वीडियो आप देखते रहें। जीवन में प्रैक्टिकल अप्लाई करना है। कोई भी आप काम करने जा रहे हैं, कोई इंटरव्यू देने जा रहे हैं, कोई फाइनेंशियल आपको डिसीजन लेना है, देख रहे हैं ना वीडियो में ईश्वर की किरण दिखा रहे हैं। आप बैठे और इससे विजुअलाइज करना ईश्वर के वरदान का हाथ। तो कोई भी आप काम कर रहे हैं, कोई इंटरव्यू, कोई एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, फाइनेंशियल डिसीज़न लेना है, बिजनेस में डिसीज़न लेना है, एक मिनट रुक कर इस अनुभव को इस दृश्य के साथ करें जो आप देख रहे हैं कि ईश्वर ने अपने आशीर्वाद, ब्लेसिंग्स, वरदान का हाथ मेरे सिर पर रखा है और वो वरदान दे रहे बच्चे, हर श्रेष्ठ कर्म में सफलता तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार। सक्सेस इज योर बर्थ राइट। तो आपको अनुभव होगा इस पॉजिटिव विचार की शक्ति से उस अच्छे काम में आपको सफलता मिल ही जाएगी। क्योंकि कई बार हम देखते हैं
लोग नेगेटिव विचार करने लगते हैं। स्टूडेंट है, एग्ज़ाम आई, इंटरव्यू देना है, पहले से ही सोच लेते हैं पता नहीं मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं, कहीं फेल ना हो जाए। पर आज से नियम बना लीजिए जिंदगी का, हर अच्छे काम के पहले 1 मिनट ये सीन कि ईश्वर के आशीर्वाद का हाथ मेरे सिर पर है, और बोलिए सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। बोलिए बहुत अच्छा। नेक्स्ट विचार हम लिखेंगे, ये सब आपको करना है। अभी 1-2 विचार और बताऊंगी, पर कब कब कर रहे ना। एक तो सुबह जब आप सो के उठेंगे 15 मिनट करिए, धीरे धीरे एक विचार बोलना और उसको फील करना, फिर दूसरा बोलना, फिर उसको अनुभव करना। और कब करेंगे? अभी तक कितने लिखवाए विचार बताइए, कितने हुए? जो लिख रहे हैं बताओ कितने हो गए? 4। ओके, अभी और देंगे आपको। और कब करना? जब रात को सोने जाते हैं, ये भी मन की साइंस से ध्यान से सुनिए। तो उस समय जब हमें हल्की हल्की नींद आ रही होती है, फिर उस समय 15-20 मिनट के लिए अंतर्मन जग जाता है। तो सोने के पहले टीवी, व्हाट्सएप, नेट, फेसबुक ये सब नहीं, 2 घंटा पहले ये सब बंद कर देना चाहिए। क्योंकि जो रात को देखकर, सोचकर, पढ़कर आप सोते हैं वो सारी रात चलता है। डर के सीन देखकर सोए, डिप्रेशन की मूवी देखकर सोए तो सारी रात वही चलेगा। भले ही देखा 1 घंटा, पर उसका इफेक्ट सारी रात चलता है। ये सब मन की साइंस है। तो 20 मिनट रात को सोने के पहले फिर ये विचार करते करते, मंत्र बनाते बनाते सो जाइए, तो मंत्र सारी रात चलेगा। मैं बहुत सुखी हूँ, मैं टेंशन फ्री हूँ, मैं बहुत भाग्यवान हूँ, तो सारी रात चलेगा। और जो सोचेंगे अंतर्मन कुछ दिनों में आज्ञाकारी सेवक बनके उस चीज को क्या कर देगा? बोलिए, आपसे बुलवा रही हूं ताकि याद हो जाए। क्या कर देगा? तथास्तु। ठीक है ना? ये भी मन की साइंस। कई पूछते कितने दिन में तथास्तु होगा? ये मन की साइंस है। 21 दिन तक अगर कोई विचार दिन में कई बार विश्वास के साथ आप सोचेंगे तो 21 दिन के अंदर अंतर्मन उसको स्वीकार कर लेता है। ठीक है? अब नेक्स्ट विचार लिखिए। मैं धीरे धीरे बोलती हूँ, लिखेंगे, और जो नहीं लाए कॉपी पेन वो धीरे धीरे अंदर डालिए। जैसे शेर का बच्चा क्या होता है? शेर, बकरी तो नहीं होता ना। तो हमें चिंतन करना है, मैं सर्वशक्तिवान परमात्मा की संतान हूँ, बहुत शक्तिशाली हूँ, समस्याओं से अधिक पावरफुल मैं हूँ, दुखों से अधिक शक्तिशाली मैं हूँ, तनाव से अधिक शक्तिशाली मैं हूँ। तो क्या होगा? अब ये भी एक चिंतन है। कई बार अगर आप ये सोचते हैं, दीदी क्या करूं, बहुत बड़ा दुख आ गया, बहुत बड़ी समस्या आ गई,
तो नहीं भी होगा, बार बार सोचोगे बड़ा दुख आ गया, बड़ी समस्या आ गई, बड़ा तनाव आ गया, तो वो तथास्तु हो जाएगा। और अगर इन केस बड़ा तनाव, बड़ी समस्या, बड़ा दुख आ भी गया और कई दिनों तक विश्वास के साथ आप सोचेंगे, अब बोलिए मेरे साथ क्या सोचना है। खुला आकाश, दोनों हाथ ऊपर। मैं सर्वशक्तिवान, बोलिए, परमात्मा की संतान हूं। विघ्नों से अधिक शक्तिशाली मैं हूं। तनाव से अधिक शक्तिशाली मैं हूं। दुखों से अधिक शक्तिशाली मैं हूं। बीमारियों से अधिक पावरफुल मैं हूं। मैं सर्वशक्तिवान परमात्मा की संतान हूं। बहुत अच्छा। तो इससे क्या होगा, कुछ दिनों में तथास्तु हो जाएगा। वो दुख, वो बीमारी, वो समस्या, वो तनाव कमज़ोर पड़ता जाएगा और आपकी शक्ति पावरफुल होती जाएगी। करके देखिए, सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, 5-7 दिन इसको करके देखिए लाइफ के अंदर। कब कब करना है? एक तो सुबह उठकर 15 मिनट, रात को सोने के पहले 15 मिनट, और फिर हम और बताएंगे कब कब करना होमवर्क। अब मैं आपको एक बहुत अच्छी सुरक्षा कवच देने जा रहे हैं। ध्यान से सुने अब इस बात को। रामायण के अंदर एक प्रसंग आता है कि मेघनाथ और लक्ष्मण जी का युद्ध चलता है। तो बोले मेघनाथ लक्ष्मण जी पे कई वार करते, पर लक्ष्मण जी का अहित नहीं होता। कोई भी शस्त्र उसको भेद नहीं पाता। तो मेघनाथ रावण के पास जाते हैं। बोले लगता है लक्ष्मण जी के आसपास कोई कवच है, कोई घेरा है, जो कोई भी अस्त्र शस्त्र उसको भेद नहीं पा रहा है। तो आज इस शिविर में हम सब अपने आसपास, ध्यान से सुनिए, ईश्वर की शक्ति का सुरक्षा कवच अपने ऊपर डालेंगे। जिस ईश्वर की शक्ति के घेरे को संसार की कोई भी समस्या, दुख, बीमारी भेद नहीं पाएगी। जैसे आप देखिए, ध्यान से सुन रहे हैं पीछे तक सब मेरी बात? तो हाथ हिलाओ जरा। वेरी गुड। बड़े बड़े जो लोग होते हैं ना, VVIP, वो चारों तरफ सिक्योरिटी से घिरे हुए रहते हैं, सुरक्षा। तो हम भगवान के बच्चे भी बहुत VIP हैं। भगवान के बच्चे, महान आत्माएं, हमें भी अपने आसपास ईश्वर की सुरक्षा कवच से अपने को घेर लेना है। तैयार है? तैयार है? हाँ। वो वीडियो देखेंगे, गोल्डन लाइट हो रहा, वीडियो देखते चले और सुनते चले कैसे घेराव डालना है। फील करिए आप बैठे और आप सबके ऊपर ईश्वर की शक्तियों का, गॉड्स पावर का गोल्डन रेड लाइट, सुनहरा प्रकाश जैसा आप वीडियो में देख रहे हैं, फील करो। वो प्रकाश ईश्वर का मेरे अंदर समा रहा है और मुझे चारों तरफ से, ऊपर से नीचे तक, ईश्वर की सुरक्षा कवच, ईश्वर के गोल्डन लाइट के सर्कल, ऑरे के अंदर मैं बैठी हूँ। और फिर संकल्प क्या करना मैं बताऊंगी, देखते चले वीडियो।
पर मेरे साथ वीडियो देखते देखते ये सुरक्षा कवच बनाओ और बोलते चलिए, मैं ईश्वर की गोल्डन लाइट सर्कल के अंदर, सुरक्षा कवच के अंदर बैठी हूँ। फील करिए आप, भगवान की सुनहरी लाल रंग की शक्तियाँ ने मुझे चारों तरफ से सिक्योर कर लिया है। अब बोलिए, इस सुरक्षा कवच को कोई भी तनाव, दुख, अशांति, बीमारियां, नेगेटिव थॉट्स भेद नहीं सकते। बोलते चलिए, बड़ा बड़ा कवच बनाओ। बोलिए, ईश्वर के सुरक्षा कवच के अंदर मैं शांत हूँ, स्वस्थ हूँ, सुखी हूँ, निर्भय हूँ। बहुत अच्छा, बना लिया आप सबने? बना लिया? हाथ तो हिलाइए, बनाया तो बहुत अच्छा। कैसे करना, लास्ट में हम मेडिटेशन कराएंगे, पर समझ लीजिए आज से, इस सुरक्षा कवच को हटाना नहीं। चल रहे हो तो भी सोचो, भगवान की शक्तियों का गोल्डन लाइट का सर्कल, तेजस्वी लाइट मेरे आसपास घूम रही है। ऑफिस में, दुकान पे, घर में काम कर रहे हो तो भी देखते चलो, वीडियो में दिख रहा है ना अच्छे से, पूरा ईश्वर ने मुझे घेर लिया, उसके कवच ने। उस कवच के अंदर हमें, रात को सोते तो भी कवच नहीं उठाना, ठीक है? जैसे मैंने सुनाया ना कि बड़े बड़े आदमियों को, वीवीआईपीस को चारों तरफ से सिक्योरिटी घेर के ही चलती है पूरी। तो आज से मुझे ईश्वर की गोल्डन लाइट के सुरक्षा कवच के अंदर ही रहना है। फील करते हैं, चलिए 2 मिनट इसको, मेडिटेशन म्यूजिक। जैसा जैसा मैं बोलूँ आप अनुभव करिए। अपने आसपास हम निर्माण करेंगे। अलर्ट होके बैठ जाए, और बाई द वे किसी को नींद आ गई हो तो उठा दीजिए। हाँ, ये पुण्य का काम है। वैसे तो जग रहे सभी, फिर भी अपने आप को जगत की शोरगुल से दूर एक शांति के स्थान पर ले चलिए। वो शांति का स्थान सागर का किनारा। आहा, उगते सूरज को देखिए, सागर की लहरों को देखते हुए चिंतन करिए। ईश्वर की अनंत शक्तियों का, गॉड्स पावर का दिव्य गोल्डन प्रकाश मुझ पर बरस रहा है। म्यूजिकल का उस प्रकाश को अपने अंदर समाइए। आहा, मैं ईश्वर का बच्चा, मोस्ट वीआईपी, ईश्वर की प्रकाश ने
उसकी दिव्य शक्तियों ने मुझे चारों तरफ से घेर लिया है। देखिए अपने आसपास ईश्वर की सुनहरी शक्तियों का पावरफुल लाइट का सर्कल, वो लाइट का गोला, शक्तियों का ऊर्जा सर्कल चारों तरफ से मुझे प्रोटेक्ट कर रहा है। इस शक्तियों के सर्कल के अंदर मैं शांत हूँ, निर्भय जीवन जी रही हूँ। सुख चैन का अनुभव हो रहा है, तनाव से मुक्त हूँ, पूर्ण स्वस्थ हूँ। वाह, मेरे पुण्य फलीभूत हुए। मेरे चारों तरफ ईश्वर ने अपनी दिव्य शक्तियों का एक पावरफुल सर्कल घेराव डाल दिया। ओम शांति। ऐसे आपको डालना है। अब मैं आपको बहुत सुंदर एक विचार देने जा रही हूं। उसके पहले इस घटना को सुनिए, सत्य घटना। ब्रह्मा कुमारीज का इंटरनेशनल हेडक्वार्टर माउंट आबू राजस्थान में है। वहाँ से कुछ प्रसिद्ध योगियों की टीम सिंगापुर गई, सत्य घटना। और उन योगियों का 200-300 NRIs के बीच स्पीच थी। तो हमको शेयर किया उन्होंने, बोले 300 के लगभग NRIs बैठे थे, मोस्टली भारत से गए थे। और बोले भारत की भेंट में सबके पैकेज 3 से 4 लाख रुपए महीना। कितना कमा रहे थे वो? 3-4 लाख रुपए। फिर भी उनके चेहरे पर खुशी नहीं दिख रही थी। बोले सबके चेहरे ऐसे दिख रहे थे जैसे बुझे हुए दीपक। तो उन योगियों ने उनसे पूछा कि आप अपना भारत छोड़ के सिंगापुर आ गए, कमाई भी अच्छी, पैकेज भी 3-4 लाख रुपए, फिर भी खुशी क्यों नहीं दिख रही? तो मेजॉरिटी ने एक ही जवाब दिया कि हम अपने मन पर, दिमाग पर, ब्रेन पर, बुद्धि पर एक प्रेशर, एक तनाव, एक दबाव फील कर रहे हैं। बोले हमारे जीवन में धन ही धन रह गया और खुशी चली गई। तो मीठे भाई बहनों, मैं आपसे कहती, आप चेक करिए, अगर किसी भी प्रकार का दबाव, प्रेशर, तनाव दिल, दिमाग, ब्रेन पर है, तो इसी क्षण सारी सभा के बीच उस तनाव को, दबाव को, प्रेशर को अभी सौंप दीजिए उस सर्वोच्च सत्ता, अपने सर्वशक्तिवान परमपिता को। दिल से सौंपिए, प्रभु आप संभालो, ठीक है? और सौंप दिया तो सौंपने के बाद क्या करना? आप मुस्कुराते रहें। चेहरे पर मुस्कान नहीं दिख रही है,
ऐसा लग रहा है बहुत सीरियस चेहरा। हाँ? तो चलिए अब ये गीत बजाते हैं हम। जब गीत बजेगा तो कुछ युवा भाई आएंगे। गीत के एक एक शब्द बहुत प्यारे। जब वो गीत बजे तो आप अपनी आयु भूलना, पोस्ट पोजीशन भूल जाइएगा और एक भगवान का बच्चा बनकर फ्रीली गीत गाना और डांस करना। कर सकेंगे? ऐसा पार्टिसिपेट करेंगे अमरेली निवासी? हाँ। पर उसके पहले एक अनाउंसमेंट करती हूँ इम्पोर्टेंट। आज शिविर का प्रथम दिन था। शिविर ठीक 8:30 बजे चालू हुआ, इनॉग्रेशन था। पर हमने देखा मेजॉरिटी भाई बहन 9 के बाद पहुँचे। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, आज तो पहला दिन है तो थोड़ा लेट शुरू माना इनॉग्रेशन वगैरह, पर कल से ठीक 8:30 शुरू करेंगे और ठीक 10 बजे पूरा। आज 10-15 मिनट एक्स्ट्रा लेंगे। तो आप सबका क्या विचार है? 8:20 तक यहाँ पहुँच जाएंगे? क्या विचार है? ठीक है ना? टाइम 9 बजे नहीं शुरू होगा, नहीं तो आधा घंटा निकल जाएगा आपका। ठीक 8:30 शुरू और ठीक 10 बजे पूरा, ताकि आप अपना घर जाके आराम से टाइम पर सो भी सकें। ठीक है? मंजूर है सबको ये समय? तो कितने बजे पहुंचेंगे कल से? 8:30 तो शुरू हो जाएगा, 8:20 आ जाइएगा। ठीक है? तो चलिए अभी मैं युवा भाइयों से रिक्वेस्ट करूंगी, आएंगे, आप सब खड़े हो जाएं। कॉर्डलेस माइक। बहुत प्यारा गीत बजेगा। इनके साथ मस्ती में आपको गीत सुनते सुनते मुस्कुराते चेहरे द्वारा डांस करना है। देखते हैं अमरेली कैसे मनाता है उत्सव। गीत मुस्कुराए जा। शाबाश। करिए आप सब मुस्कुराते चेहरों द्वारा, झूमिए। तेरी जिंदगी में यूं तो कई दर्द आएंगे, दर्द आएंगे। अगर मुस्कुराएगा, ताली तो बजा सकते हैं। मुस्कुराएगा तो दर्द भाग जाएंगे, भाग जाएंगे। अरे मुस्कुराए जा, हर घड़ी है एक इम्तिहान, गिर के ही संभलते सब यहाँ। बहादुरों का ही है ये जहां, हर एक हाल में किसी भी चाल में तालियां बजाएं। हिम्मत न हार और मुस्कुराए जा। हो 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 तेरी जिंदगी में यूं तो कई दर्द आएंगे, दर्द आएंगे। अगर मुस्कुराएगा, अगर मुस्कुराएगा तो दर्द भाग जाएंगे, भाग जाएंगे। अरे मुस्कुराए जा, मुश्किलों से हारना नहीं, यूं जिंदगी गुजारना नहीं। मन कभी तुम मारना नहीं, शाबाश। किसी भी मोड़ पे कोई साथ छोड़ दे, हिम्मत न हार और मुस्कुराए जा। हो 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 हो। अमरेली मुस्कुराइए, अमरेली मुस्कुरा रहा है। हो 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 हो।
अगर मुस्कुराएगा तो दर्द भाग जाएंगे, भाग जाएंगे। अरे मुस्कुराए जा, ओ तेरी जिंदगी में यूं तो कई दर्द आएंगे, दर्द आएंगे। अगर मुस्कुराएगा, अगर मुस्कुराएगा तो दर्द भाग जाएंगे, भाग जाएंगे। अरे मुस्कुराए जा। शाबाश, जोरदार तालियां बजाएं इनके लिए। तो मुस्कुराने के लिए क्या करना? सिर्फ बाहर से नहीं मुस्कुराना है, भीतर से मुस्कुराना है। तो कोई प्रेशर चल रहा है, तनाव चल रहा है, दुख चल रहा है, तो इसी क्षण सौंप दीजिए किसको? सर्वोच्च शक्ति परमपिता को, कि प्रभु आप संभालो, मैं मुस्कुराऊंगी या मुस्कुराऊंगा। ठीक है, तो आप सबने अच्छे से पार्टिसिपेट किया, तालियां बजाएं खुद के लिए। इस शिविर में रोज अलग अलग ऐसे उत्सव मनाएंगे। आनंद तब आएगा जब अपनी आयु, पोस्ट, पोजीशन भूलकर ईश्वर का बच्चा बनकर इस शिविर का आनंद लेना है। ठीक है, अभी 10-15 मिनट और ले सकते हैं। वैसे तो टाइम हुआ आज का, फिर भी क्योंकि फर्स्ट डे इनॉग्रेशन में हुआ ना, ले सकते हैं ना 10-15 मिनट। ओके, थैंक यू। तो अब एक महामंत्र आपको देने जा रही हूँ, सुनिए। जो आज हमारा विषय है, इंस्टेंट रिलीफ फ्रॉम ऑल वरीज। मंत्र है ये। एक बार एक राजा की भेंट एक फकीर के साथ हो गई, और राजा ने फकीर को कहा कि मेरे जीवन में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, पर आप मुझे कोई ऐसा मंत्र दीजिए कि जब भी जीवन में कष्ट आए, दुख आए, परिस्थिति आए, तो उस मंत्र को मैं पढ़ लूं। तो फकीर ने राजा को एक अंगूठी दे दी और उसने कहा, ये अंगूठी रख लेना, इसमें एक मंत्र लिखा है, उसको पढ़ लेना जब भी दुख आए, कठिन समय आए। तो राजा ने अंगूठी रख ली। बहुत वर्ष बीत गए। अचानक राजा के राज्य पर हमला हो गया। उसका मनोबल टूट गया, पराजित हो गया और वहां से भाग निकला। अचानक राजा को फकीर के द्वारा दी हुई अंगूठी याद आई। राजा ने उस अंगूठी को खोला, उसमें जड़े रत्न को हटाया, उसमें से कागज का टुकड़ा बाहर निकला जिस पर मंत्र लिखा था कि यह समय भी गुजर जाएगा। क्या लिखा था? यह समय भी गुजर जाएगा, यह वक्त भी गुजर जाएगा। तो इतना पढ़ते ही पुनः सम्राट का मनोबल लौट आया। तो तनाव से मुक्ति का क्या मंत्र हुआ? आप ध्यान से सुनिए। सब दिन होत ना एक समान। अपने आप से पूछिए कि जो परिस्थिति आज किसी कारणवश आपके जीवन में आई है, क्या कल थी? आने वाले समय में भी नहीं रहेगी। समय परिवर्तनशील है, सब दिन होत ना एक समान।
तो अपने से बात करिए। मैं धीरे धीरे बोलती, अपने से बात करिए। कोई दुख चल रहा है, कठिन समय चल रहा है, खराब रिश्ते चल रहे हैं, बीमारी चल रही है, अपने आप को समझाइए यह बड़ा दुख भी, कठिन समय, बड़ी बीमारी, बड़ी परिस्थिति भी गुजर जाएगी। सब दिन होत ना एक समान। जब रोज सोचेंगे यह गुजर जाएगा, तो तथास्तु हो जाएगा। अब मैं आपको बहुत सुंदर एक मंत्र और देने जा रही हूँ, पावरफुल इंजेक्शन। डॉक्टर इंजेक्शन देते हैं रोज, तो हम भी आपको शिविर में रोज चिंतन के लिए, होमवर्क के लिए एक आध्यात्मिक इंजेक्शन माना ये विचार देंगे, डिफरेंट आनंद वाला है विचार। तो अभी सुनेंगे अब क्या विचार। मैं पढ़ती हूं, आप मेरे साथ बोलेंगे। अब सुनिए। बाहर किसी भी प्रकार की जीवन में हलचल चल रही है, चाहे हेल्थ को लेकर कुछ गड़बड़ चल रही है, बाहर हलचल है, रिश्तों को लेकर कुछ गड़बड़ है, या जीवन में कोई फाइनेंशियल बिजनेस की दिक्कत है, बाहर भले हलचल है, अंदर से एक संकल्प करिए, आज मुझे किसी भी कीमत पर अपने भीतर के आनंद को गंवाना नहीं है। एट एनी कॉस्ट मुझे अपने आनंद को गंवाना नहीं है। तो क्या संकल्प करना, बोलिए मेरे साथ, हाथ ऊपर करके, दोनों हाथ खुला आकाश। मैं आनंद में हूं। और जोर से, मैं आनंद में हूं, मैं आनंद में हूं। बहुत अच्छा। तो इससे क्या होगा? आनंद में हूं कहते रहने से कुछ दिनों में अंतर्मन आज्ञाकारी सेवक बनके तथास्तु करेगा और आपको अनुभव होगा, आप आनंद में रहने लगेंगे। और आनंद में हूँ सोचते रहने से आनंद में रहना आपका संस्कार बन जाएगा। फिर आपको अनुभव होगा, बाहरी परिस्थितियाँ कुछ भी चल रही हैं, मेरे भीतर का आनंद मेंटेन है। ठीक है, तो क्या संकल्प, क्या होमवर्क हुए वो हम फिर रिवाइज कर लेते हैं। पर उसके पहले कल का इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट। कल जो हम विषय लेने जा रहे हैं, भारत में बहुत उत्सव मनाते हैं, होली, दिवाली, दशहरा। अभी होली मनाया हम सब ने। कल इस शिविर में मनाएंगे आध्यात्मिक उत्सव, खुशियों का उत्सव, फेस्टिवल ऑफ हैप्पीनेस। तो आप सब तैयार हैं खुशी का उत्सव मनाने के लिए? तो जैसे बड़े दीदी जी ने कहा, कल अकेले नहीं आना है। हर व्यक्ति को अपने अड़ोसी, पड़ोसी, मित्र, संबंधी, परिवार सहित इस शिविर के उत्सव में शामिल होना है। ये 9 दिन तक, आज का दिन तो गया, अब 8 दिन तक अमरेली आध्यात्म के रंग में रंगेगा। और हमारी ऐसी शुभ भावनाएं, रोज़ आपको अलग अलग उत्सवों के माध्यम से अलग अलग विषयों को समझाया जाएगा। तो हम इतनी दूर से आपके बीच आपकी सेवा के लिए ईश्वरीय खजाने देने आए हैं। तो आप सब पूरा लाभ लें। कल का विषय, जीवन में खुश रहने के नुस्खे, खुशी का रिमोट कल आपको दिया जाएगा। आजकल कितना धन खर्च करते खुश रहने के लिए, फिर भी सच्ची खुशी नहीं मिलती।
और कल इस शिविर में बिना खर्चे 1 पैसा भी नहीं देना होगा और सच्ची खुशी का खजाना, ईश्वरीय खुशी, इटर्नल खुशी, सात्विक खुशी आपको मिलेगी। और ऐसा कल का उत्सव और सेशन रहेगा। किसी को सीवियर डिप्रेशन है तो भी उसको कल खुशी मिल जाएगी और आप सबके चेहरे कल के सेशन के बाद खुशी के मारे टमाटर से भी ज़्यादा लाल हो जाएंगे। ठीक है, ताली तो बजा दो। तो आज अभी मैं मेडिटेशन की अनुभूति कराएंगी। उसके पहले होमवर्क, जितने भी आपको आज विचार दिए उन सबको करना है। सुबह उठ के करना, रात को सोने के पहले करना और दिन में हर घंटे 1 मिनट। बोलेंगे आप सब मेरे साथ ताकि रिवीजन हो जाए। बोलिए, मैं टेंशन फ्री हूँ। बोलिए, खुले आकाश को देखकर भीतर से आवाज, मेरा जीवन तनाव, विघ्न, समस्याओं से मुक्त है। नो प्रॉब्लम। दूसरा विचार बोलिए, मैं बहुत सुखी हूँ। मैं बहुत सुखी हूँ। मैं धनवान हूँ। धनवान हूँ। बहुत भाग्यवान हूँ। प्रभु के वरदानों का हाथ मेरे सिर पर है। सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। मैं परमात्मा के सुरक्षा कवच के अंदर हूँ। मैं आनंद में हूँ। मैं आनंद में हूँ। आनंद में हूँ। बहुत अच्छा। 5 मिनट मेडिटेशन की अनुभूति करेंगे हम सभी। अलर्ट हो जाएं। अपने आप को सागर के किनारे ले चलें। फील करें सुबह का सुंदर समय, सूर्योदय का वक्त। उगते सूरज को देखिए। नेगेटिव विचारों को शांत कर दीजिए। किसी प्रकार का प्रेशर, तनाव, लोड, बीमारी, समस्या जीवन में चल रही है, सर्वोच्च पिता को सौंप दीजिए। प्रभु आप संभालिए। मैं आपका बच्चा बादशाह बन जीऊंगी। I am not the general manager of universe. मैं आनंद में हूँ। अनुभव करिए ईश्वर ने अपने आशीर्वाद, वरदान का हाथ मेरे सिर पर रख दिया। उनका दिव्य प्रकाश, गोल्डन लाइट, वो ऊर्जा अपने भीतर प्रवेश होती देखिए। आहा, ईश्वरीय शक्तियाँ मुझ में प्रवेश हो रही है। चारों तरफ से उनकी गोल्डन लाइट के सर्कल ने मुझे घेर लिया।
चारों तरफ फुल सिक्योरिटी कवच। आहा, सर्वोच्च शक्ति के ऊर्जा सर्कल को संसार का कोई भी दुख, परिस्थिति, वायुमंडल, तनाव भेद नहीं सकता। चारों तरफ इस ऊर्जा सर्कल के अंदर मैं शांत बैठी हूँ। मैं बहुत सुखी हूँ, स्वस्थ हूँ, आनंद में हूँ, आनंद में हूँ, आनंद में हूँ। ओम शांति। धीरे धीरे उठेंगे गीत सुनते हुए। मुस्कुराए जा। तेरी जिंदगी में यूं तो कई दर्द आएंगे, दर्द आएंगे। अगर मुस्कुराएगा, अगर मुस्कुराएगा तो दर्द भाग जाएंगे, भाग जाएंगे। अरे मुस्कुराए जा। हर घड़ी है एक इम्तिहान, गिर के ही संभलते सब यहाँ। बहादुरों का ही है ये जहां। हर एक हाल में, किसी भी चाल में हिम्मत न हार और मुस्कुराए जा।